अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता हफ्ते आपने मुजरिम कौन में देखा कि एक थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में बच्चे को कत्ल किया गया। मुद्दईयान की आपने गुफ्तगू सुनी और टीम मुजरिम कौन की निशानदही पे फैसलाबाद पुलिस हरकत में आई। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आज के प्रोग्राम में हम आपको गुज़िश्ता हफ्ते की कुछ झलकियाँ भी दिखाएँगे जिसमें मुद्दईयान का मौक़िफ़, और आज आपको बताएंगे कि पुलिस ने इस पर कैसे एक्शन लिया और मुल्ज़िमान को कहां से और कैसे गिरफ्तार। गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में एक 16-17 साल जवान को कत्ल कर दिया गया। अहले मोहल्ला इलाका मकीन अभी तक इस खबर पे यकीन करने को तैयार नहीं कि वो हंसता मुस्कुराता ज़िंदगी से भरपूर नौजवान इस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ उस मकतूल बच्चे के ताया मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह पेश आया, किस जुर्म की पादाश में उस नौजवान की जान ले ली गई। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। मेरा नाम सर डॉक्टर शफीक भट्ट है। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या बना, क्या किस तरीके से ये सारा वाक़या पेश? सारे दोस्त 4-5 दोस्त है ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਖੇਲਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੜਾ ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ, ਤੇ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੱਟੀ ਪੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿਸ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਯੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, 16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਲਾਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਉਲਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ-ਗੁਣ ਆਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਦੇ। ਬਗੈਰ ਲਾਂਭੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜਸ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, 11 ਵਜੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਖੂਨ 'ਚ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਦੌੜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਮਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, 2 ਫਾਇਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਉੱਠਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, 2 ਫਾਇਰ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੇ, ਪਹਿला ਫਾਇਰ मत्थे ਤੇ ਰੱਖ के मारा ਜਿਹੜਾ मिस हो गया। बिल्कुल कुदरती फैक्टर है कि इंसान को अपनी जान इतनी प्यारी होती है और वो नौजवान था, जाहिर है उसको गोली लगी, उसके बावजूद वो उठ के भाग गया, जान उसने बचाने की कोशिश की है। इर्द गिर्द जो लोग थे उनके बारे में क्या कहेंगे आप? किसी ने उनको रोकने की, सामने आने की या पकड़ने की कोशिश नहीं की? सर असल जिस बंदे को असला होवे ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੇ ਆਣਾ। 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ वालिद ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਆ ਗਿਆ। साथ खेलने वाले दोस्त क्या इस हद तक जा सकते हैं कि एक इंसानी जान को बग़ैर किसी वजह के ले लें? और ये नौजवान एग्जैक्टली इसी तरह के सानहे का शिकार हुआ जिसके घर वालों को अभी तक इस बात की खबर नहीं है कि आखिर उनके बच्चे का कसूर क्या था। वही दोस्त यार जो साथ बैठते उठते और खेलते थे, वही उसकी जान के दर पे हुए और जान ले ली। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं नौजवान के बारे में, उस बच्चे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। इम्तियाज़ भाई, उम्र 16-17 साल का, जिसकी उम्र नहीं थी अभी कि उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया जाता, उसे कत्ल कर दिया जाता, क्या कहेंगे आप इस सानहे पे? ये वाक़या नहीं है
ये सानेहा है ये जो 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 जुल्म है जी, जुल्म है ये। छोटे बच्चे पे जुल्म किया गया है। मेरे बच्चों के साथ वो खेलता रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में ये झगड़े हैं। वो झगड़ा देखो किधर तक ले गए हैं वो। कोई सॉलिड कोई कंक्रीट वजह भी तो होती है कोई किसी चीज़ की। क्या कोई इस हद तक शफाक हो सकता है कि बगैर किसी वजह के एक मामूली तल्ख कलामी, दोस्तों के दरमियान हल्की सी रंजिश हो जाती है, दोस्तों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हमने अपने बचपन में क्रिकेट ग्राउंड्स में और लड़ाइयाँ की हैं, एक दूसरे के ऊपर बल्ले से जो हैं वो लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन बड़े आके हमेशा चीज़ों को कंटेन कर लेते थे, समझा लेते थे। सबसे पहले जो शिकायत कुनिंदा होता था, जो शिकायत लेके जाता था, उसकी सुनी जाती थी। कसूर जिसका भी होता था, सबसे पहले जिसको हम पंजाबी में उलामा कहते हैं, उलामा देने वाले की सुनी जाती थी, चाहे जिस साइड के भी बुज़ुर्ग हों। यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे कमी रह गई? सर बच्चों की लड़ाई हुई है, उधरों कोई आया ही नहीं, ना कोई उन्होंने लामा आया। ठीक है ना, उन्होंने अपने कज़न उन्होंने इत्थे जवान होया इस महल्ले दे विच, उन्होंने हायर किया वा, हायर करके उसको फैर मरवाते साढ़े बच्चे। कोई किसी तरह की वार्निंग नहीं, कोई किसी तरह का एक हुंदा कि धमकी देनी पे तेनों वेख लवांगे, ऐसा भी कोई चक्कर? कोई वार्निंग नहीं दी गई कि बच्चे अपने नूं समझाओ, तुहाडे बच्चे दा यह कसूर आ, साडे बच्चे नाल लड़िया वा। ठीक है, कोई वार्निंग नहीं दी गई है। उम्र तुहाडे सामने पल के जवान हो रहा सी, साडे हत्थां 'च पलिया जी। कैसी तबीयत दा बच्चा? बच्चा बहुत नाइस बच्चा सी, मेरे बच्चों के नाल खेडदा सी, मेरे बच्चों के नाल पढ़न जांदा सी। मेरे घर बिल्कुल है, मेरे सामने घर आ, मेरे घर आ जाता हूँ। 17 साला नौजवान जो शायद मुस्तकबिल के बहुत सारे सुहाने सपने सजाए बैठा था, जो 3 बहनों का इकलौता भाई और अपने वालिद का सहारा था, उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इलाका मकीन अभी तक ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या, क्योंकि ना किसी ने किसी झगड़े की बात सुनी, ना कोई ऐसी र्यूमर थी कि इन नौजवानों का किसी के साथ किसी तरह का कोई भी तनाज़ा या लड़ाई है, और कातिल भी वही जो साथ उठने बैठने और खेलने वाले हैं। आखिर ऐसा मामला क्या हुआ? मेरे साथ मकतूल के कज़न मौजूद हैं, दयाजाद भाई हैं, उनसे जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम बिलाल है। बिलाल, आप दयाजाद भाई हो उम्र के? हाँ जी, मैं उसका कज़न ही भाई लगता हूँ उसका। आपके साथ पला बड़ा जवान हुआ, क्या उसकी क्या किसी के साथ अदावत थी, दुश्मनी थी, क्या हुआ क्या? कोई मसला नहीं था उसका किसी के भी साथ, ना कभी किसी से हम लड़े, ना कभी किसी झगड़े। वैसे ही किसी ने कुछ कह भी जाना चले गया, ना कोई मसला नहीं यार, कभी किसी के साथ नहीं लड़े हम तो। वल्लाह आलम उसका क्या, किसी के दोस्त ही थे, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि यार ये चीज़ भी हो जाएगी किसी उसके साथ। उसने तो अपने अब मैट्रिक के पेपर दे रहा था, ये उसकी स्लिप है। इसका पेपर था, सप्ली का पेपर था। नाज़रीन इकराम, एक भाई की रोल नंबर स्लिप जेब में डाले हुए ये नौजवान अभी तक समझ नहीं पाए कि आखिर इनके भाई का कसूर क्या था। जिन हाथों में रोल नंबर स्लिप है, शायद अब ये उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दफातर के चक्कर लगाएंगे। शायद ये कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये सवाल पूछेंगे कि आखिर हमारे भाई के कातिलों का क्या बना, क्योंकि 24 घंटे पहले तकरीबन अहले इलाका ने, पूरे इलाका मकीनों ने जो है वो भरपूर एक एहतजाज किया, सिर्फ मुबैना तौर पर पुलिस के नारवा सलूक और कोताही पे, कि अभी तक पुलिस की जानिब से किसी तरह का कोई भी अमली तौर पर मुजाहरा ऐसा सामने नहीं आ रहा कि मुल्ज़िमान के गिर्द पुलिस जो है वो घेरा तंग कर रही हो। बताइएगा, उमर ने कभी आपसे किसी तरह की परेशानी को शेयर की हो, या क्या उसके फ्यूचर प्लान्स क्या थे, बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? कुछ भी नहीं, उसने हमें ये चीज़ ही नहीं बताई कि मेरी किसी के साथ दावत है, कोई है ही नहीं थी उसकी। दोस्त थे, उसे क्या पता था कि ये चीज़ भी बन जाए कि किसी से लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाता है, तो क्या उसे क्या पता था कि यार कोई इसके फायर भी मार जाएगा। इस उम्र में बच्चों के ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, जैसे बताते हैं वो अपने भाइयों को, कज़नों को कि वेखी मैं वड्डा होकर फ़लाना बनांगा, ए काम करांगा। क्या वो बिज़नेस करना चाहता था, कोई जॉब करना चाहता था, ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था, कम था, किस तरह की नेचर थी उसकी? नेचर तो बहुत अच्छी थी उसकी। अब अपना काम करने का उसका इरादा था कि मैं अपना काम करूँगा, अपना कारोबार कोई करूँगा मैं। नाज़रीन, कब तक हमारा अमन आमा का मसला जूं का तूं रहेगा? कब तक इस उम्र के नौजवान जो हैं वो इस कल्चर पे चलेंगे कि असलहे की फरावानी है और जान लेना शायद दुनिया का सबसे आसान काम बन गया है। मेरे अक़ब में ये नौजवान उस मकतूल बच्चे के दोस्त हैं जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और जिसका गुनाह
कुछ भी अभी तक सामने नहीं आया। कोशिश करते हैं दोस्तों से बात करके जानने की कि मिजाज कैसा था, क्या ऐसा तो नहीं था कि वो तल्ख कलामी में जो है तुर्श जवाब दे गया हो और किसी की सो कॉल्ड ईगो हर्ट हो गई हो। बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाम बताना। मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान पढ़ते हो? नहीं जी, इसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? घर वालों ने छुड़ा दिया। अच्छा ये बताओ, आपका दोस्त था उमर, जी। आप इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे रहते थे, एक ही मोहल्ले में रहते हो आप लोग, कब से दोस्ती? मैं यहाँ पे आया था रमज़ान के अंदर, हम यहाँ पे आए थे और ईद पे हमारी मुलाकात हुई थी। ईद पे आपकी मुलाकात हुई। कैसा बच्चा था उमर? बहुत नाइस था हमारा यार। हमारा यार नहीं था, हमारा भाई था वो। और क्या रूटीन क्या थी, कब आपकी मुलाकात कब होती थी? क्योंकि वो तो स्टूडेंट था, आप स्टूडेंट नहीं हो। आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आप कबड्डी के प्लेयर भी हो, उसको भी शौक था? नहीं, उसको बस यही शौक़ था सिर्फ घर में रखने का, और वो इतना बाहर फिरता ही नहीं था। मैं सिर्फ जुम्मे वाले दिन इनके पास आता था, और जुम्मे वाले दिन मैंने इनके पास 5 बजे आना था, उस 8 बजे मुझे घर छोड़ा थे वहाँ पे जाके। मतलब एक कैलकुलेटेड सी रूटीन थी कि उसने अपना काम करना है, आपने अपना करना है, और फिर दरमियान में थोड़ा सा जो टाइम मिलता था वो फिक्स था कि बैठे गपशप लगाई। हाँ जी, मैंने सिर्फ यहाँ पे जुम्मे वाले दिन आना होता था इनके पास, और 8 बजे मैंने चले जाना था। बेसिकली ये घर पे ही होता था या बाहर ही नहीं जाता। जिसके कज़न ने कत्ल किया है वो भी आप लोगों में बैठता था? नहीं, मैंने नहीं उनको कभी देखा, ना मैंने उसकी शक्ल देखी है, मैंने सिर्फ उसकी पिक ही देखी है, तस्वीर देखी है सिर्फ। आपका क्या नाम है? आकाश अहमद। आकाश, आप कब से दोस्त हो? मुझे 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से। जी। क्या रूटीन थी उमर की, क्या करता था? एक होता है वालिदैन का ज़िम्मेदार बच्चा, क्योंकि अकलौता था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लाडला था और उसकी हर जायज़ नाजायज़ पूरी होती? लाडला था जी। लाडला था जी। और वालिदैन का, बहनों का ख्याल करने वाला था? हाँ जी, ख्याल करने वाला था। बहुत अच्छा दोस्त था, हमारा भाई था वो। हम सुबह टाइम वो पार्क में मिलते थे, उसके बाद हम स्कूल से आते अकेडमी जाते, अकेडमी के बाद मिलते बस। अच्छा, आपके साथ पढ़ता भी था वो? नहीं, मेरे साथ नहीं पढ़ता था। साथ नहीं पढ़ता था। अकेडमी एक थी आप लोग? नहीं, अकेडमी वो अकेडमी नहीं था जाता। आप अकेडमी जाते थे, वो अकेडमी नहीं था जाता। 4-5 साल से आपकी दोस्ती है। कभी आपने कोई उसकी चीज़ ऐसी नोटिस की हो कि ये लड़ाई कर सकता है, किसी के आगे बदतमीज़ी कर सकता है? नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई कभी की ही नहीं उसने। कभी नहीं की। नाज़रीन इकराम, जब इतनी सारी गवाहियाँ मौजूद हों तो फिर ये बात साबित शुदा होती है कि एक बच्चा जो मासूम था उसे कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम, नाम बताना बेटा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम महरोज़ है। महरोज़, कब से दोस्ती थी? हमारी काफ़ी देर से हम इकट्ठे खेलते थे, इकट्ठे बैठते थे। इधर ही रहते हैं, वो भी हमारे घर के पास। पहले पार्क में जाते थे सुबह टाइम इकट्ठे। जौन सा नहीं था उसको नाश्ता वगैरह कह देते थे करवाओ, आप एक दिन नहीं आए। इकट्ठे खेलते। ये दोस्तों में होता है कि पेनल्टी एक दूसरे को डाल देते हैं, तू कल नहीं सी आया, चल रोटी खवा। हाँ जी, यही बात है। ऐसे जब आपको ये खबर मिली तो क्या यकीन आ गया उसी वक्त, या यकीन करना मुश्किल था? यकीन करना बहुत मुश्किल था कि मेरे दोस्त को फाइल लगे हैं, ऐसे ऐसे लगे हैं, और वो उठ के भागा है। उसकी ये भी हिम्मत है ना, उसके 2 फाइल लगे फिर भी वो भाग रहा है, वरना हमारे वर्ग जैसा होता ना वो भागता भी ना, उठ के वहीं डर के मारे वहीं रह जाता। गुज़श्ता हफ्ते की हाईलाइट्स आपने देखी, मुद्दईयान का मौक़िफ़ देखा और मुतासरीन की गुफ्तगू सुनी, और टीम मुजरिम कौन अभी मौजूद है फैसलाबाद में थाना गुलाम अहमदाबाद के अंदर। अब आपको पुलिस की साइड का वर्जन भी सुनवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं आपकी SHO थाना गुलाम अहमदाबाद से, और आपको बताते हैं कि किस तरीके से फिर टीम मुजरिम कौन की निशानदही पर पुलिस हरकत में आई और मुल्जिमान को अरेस्ट किया। इन फैसलाबाद में थाना गुलाम अहमदाबाद की हदूद में एक 14-15 साला बच्चा कत्ल होता है जो मैट्रिक के सेपली के पेपर्स दे रहा था। गुज़श्ता हफ्ते हमने आपको लवाहिकीन की गुफ्तगू सुनवाई और उनका मौक़िफ़ बताया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना गुलाम अहमदाबाद में, और हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलाम अहमदाबाद मोहसिन अली कंबोज साहब, सब इंस्पेक्टर हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं क्योंकि ये उस टीम का हिस्सा रहे, लीड करते रहे मुल्जिमान के अरेस्ट तक, वक़ूआ की इत्तला से मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक हर पल इनकी नज़र के सामने रहा। इनसे पूछते हैं कि क्या हक़ाइक़ क्या थे, वाक़यात किस तरह से रूनुमा हुए और पुलिस जो है वो मुल्जिमान तक कैसे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहसिन भाई बताइएगा ये क्या वाक़या क्या था, रिपोर्ट कैसे होता है और फिर आपका रिस्पॉन्स इस पर क्या था? सर 4 तारीख को 4 अक्टूबर को तकरीबन हमें 1-5 कॉल वसूल होती है अराउंड 11 बजे के बाद कि ये वक़ूआ हो गया, लड़के को फायर लग गया है। इसी दौरान हमारी 2 टीमें फौरी, एक टीम मौका पर जाती है, दूसरे मैं और हमारे मुलाजमान हम अलाइट भी जाते हैं।
तो बच्चा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है ओटी में। उसके बाद एसएचओ साहब और साथ जो टीम है वो उनके जो मस्कन है सईद बरादरान की तरफ से ये फायर लगा था, उनके जो मस्कन वहाँ रेड करते हैं, वहाँ जो उनके लवाकिन हैं, उनके वर्षा वगैरह है, वो तो आप भाग जाते हैं। वो जो मुलजमान हैं उनके जो भाई हैं या वालिद वगैरह हैं उनको हम अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताइएगा, बच्चे को एक से ज़ायद गोलियां लगती हैं और फिर वो कुछ घंटे सर्वाइव भी करता है, हॉस्पिटल में जाके इसकी डेथ होती है? जी 2 गोलियां लगती हैं, बंदा इसका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाता है, वहाँ इसका ऑपरेट होता है, तकरीबन 2 दिन बाद इसकी डेथ होती है। तो और इसी दौरान जो हमारी जो टीमें हैं हमारे अफसरान ने 3 टीमें बनाई हैं, इसके लिए बनाई थी। एक जो सीसीटीवी और सीडी ब्रांच वाले वो हमारे साथ थे, एसएचओ साहब वो भी थे साथ, और मैं भी था। मैं चूँकि जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वहाँ रेड कर रहा था, उनकी जो मस्कन है, जो उनके रिलेटिव्स हैं, कि मे भी ये हमें हड़प्पा में या कहीं साहिवाल के हमें ये मिल जाएँ। ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये मोहसिन भाई। एक मुलजिम है, वो एक कत्ल जैसा हीनियस क्राइम कमिट करके, ज़ाहिर है वो घर पे तो नहीं रहेगा, तो फिर पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इनके लवाहिकीन ने बाकायदा एहतजाज किया कि जी पुलिस हिले बहाने से काम ले रही है, मरकज़ी मुलजिमान अरेस्ट नहीं कर रहे। और हमने अपने नाजरीन को दिखाया कि क्या उनका मौक़िफ़ ये था कि जी पुलिस ने उनके रिश्तेदार तो उठा लिए हैं, उनके भाई तो उठा लिए हैं, लेकिन हमारे मुलजिमान जो हैं वो पहुँच से दूर है। ज़ाहिर है एक मुलजिम है, वो फायर करके किसी का कत्ल करके वो घर में तो नहीं बैठेगा, वो भागता है। तो पुलिस के लिए फिर कितना मुश्किल होता है। ज़ाहिर है एक फील्डिंग सेट करनी होती है आपको टेक्निकल टीमों की जो है वो असिस्टेंस लेनी होती है, साथ साथ उनकी लोकेशंस, उनकी सीडीआर, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कितना टाइम लगा इन तक पहुंचने में, इनको ट्रेस आउट करने में, क्या क्या मसाइल क्या क्या आपको फेस करने को? बताया कि इसमें हमारी 3 टीमें बनाई हैं अफसरान ने। एक हमारे जो सीडी ब्रांच वाले हैं वो आ गए, उन्होंने जो सीसीटीवी कैमराज है वो चेक किए, और जो मुलजमान हैं उनके जो हमने नंबर वगैरह लिए, उनके नंबर ट्रेस किए। एसएचओ साहब और साथ टीम वो जो उनके मस्कन आए हैं उन पर रेड किए। मैं चूँकि अलाइड में था, पोस्टमार्टम के लिए अपना अलाइड में था, उसकी जो ट्रीटमेंट वो करवा रहा था बच्चे की, कि अल्लाह करे उसको ब्लड था उसका ए पॉजिटिव, वो रेज करवाया उनके लिए। काफ़ी यानी कि उनकी हेल्प की है कि अल्लाह करे ये बच्चा बच जाए। लेकिन वो बच्चे का ऑपरेट भी हो गया, लेकिन अल्लाह की जो रज़ा थी। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट मोहसिन भाई ये भी है कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ मुजरिमान को नहीं पकड़ती, बल्कि अगर किसी को असिस्टेंस की हेल्प की ज़रूरत, जैसे आपने बताया कि बच्चा हॉस्पिटल में है तो उसके लिए ब्लड वगैरह अरेंज, ये भाग दौड़ भी पुलिस के फ़राइज़ में शामिल है और पुलिस करती है। जी बिल्कुल जी। हमारे आईजी साहब का ये प्रोग्राम है ब्लड डोनेशन का, तो वो तो अब आप 15 कॉल करके आपको ब्लड उसी वक्त मिलता है। हमने इस बच्चे के लिए अलाइड से ही ब्लड अरेंज किया, और इसके लिए काफ़ी एफर्ट की कि अल्लाह ताला इस बच्चा बच जाए, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा। लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी रेड्स किए अपना इधर साहिवाल के इलाके में, हड़प्पा के इलाके में, लेकिन फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन 2-3 डेज़ जो मुलजमान थे और मेन थे उनको हमने अरेस्ट कर लिया। लेकिन मज़े की बात यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने मुझे पूछा है कि हम इधर मसरूफ़ थे, जो बच्चा है इंजर्ड था, बाद उसकी डेथ हो गई, उसके इलाज मुआवजे के लिए और उनके मुलजमान को पकड़ने के लिए हम बिल्कुल ना सोए ना बैठे, बिल्कुल एक्टिव थे। लेकिन जो ही जिस वक्त बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा था, इधर उन्होंने एहतियाज शुरू कर दिया। ये मैं यही आपसे पूछने वाला था कि बाकायदा उन्होंने एहतजाज किया, अहले इलाका को साथ लिया, और अच्छा खासा उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ बोले भी कि जी पुलिस जो है वो रिवायती सुस्ती का मुजाहरा कर रही है, वो आला हुकाम की तरफ भाग रहे थे, कह रहे थे। इस तरह लग रहा था जैसे जो है वो मुतमईन नहीं है पुलिस की कारकर्दगी से, कार्रवाई से, जबकि आप जैसे बता रहे हैं कि 15 की कॉल के बाद से मुलजमान के अरेस्ट तक पुलिस पार्टी, जितनी भी पार्टीज़ थी, ज़ाहिर है हीनियस क्राइम था, बड़ा आया इस पर आईजी पंजाब, सीपीओ, आरपीओ साहब फैसलाबाद जो हैं, ये समेत तमाम जो हैं वो लोग एक्टिव हैं। ज़ाहिर है इस पर ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई जाती है। आपने जैसे बताया कि आपकी टीम थी, आप बाकायदा अलाइड में गए, आपने उसका बच्चे का जो है वो ट्रीटमेंट, और उसके बाद जब उसकी डेथ होगी उसका पोस्टमार्टम, सारी उसकी कार्रवाई, और उसके बाद जैसे ही आप उसकी पोस्टमार्टम से फ्री हुए, आपने उनका मुलजिमान का फॉलो अप शुरू कर दिया, आपने उनको राउंड अप करना शुरू कर दिया। तो फिर ये एहतजाज क्यों, किस लिए, क्या मामला क्या था? असल में ये एक ना ट्रेंड बन चुका है कि देखें, एक तो पुलिस है ही आप लोगों की हेल्प के लिए है, ठीक है जी, खिदमत अवाम की फ़र्ज़ हमारा, ये हमारा मोटो है। लेकिन इधर हम मसरूफ़ हैं मुलजमान को पकड़ने के लिए, बच्चे के पोस्टमार्टम करवाने के लिए। अब पता नहीं इन लोगों ने एहतियाज शुरू कर दिया। ये वैसे इनका बचाए हमारे वो साथ हमारे हेल्प करते, हमारे साथ चलते, उन्होंने ये ऐसा कुछ भी नहीं किया। और क्या मोहसिन भाई ऐसा तो नहीं है कि लोगों को अब जैसे एक नया इदारा बन गया है पुलिस के अंदर, सीसीडी का,
वो तवज्जो हासिल करने के लिए आला हुकाम की कि जी पुलिस की कारकर्दगी से तो हम मुतमईन नहीं हैं, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है। कानूनी तरीके से आप जंग करेंगे, आप कोर्ट्स में जाएंगे, आप प्रूव करेंगे, वो एक लंबा प्रोसेस है। क्या ऐसा तो नहीं है कि लोगों का एक माइंड सेट बन गया है कि हमने शॉर्टकट लेना है, हम आला अफसरान को प्रेशराइज़ करेंगे, पुलिस को प्रेशराइज़ करेंगे, पुलिस सीसीडी को देगी और कहीं ना कहीं वो उनका इनकाउंटर होगा और वो पार? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लोगों में अब ये एहतजाज का ट्रेंड इसलिए भी सेट होता जा रहा है कि पुलिस नहीं सीसीडी? कुछ वजह यह होती है कि जो लोग ना जो ट्रेंड है एहतजाज का, कुछ तो हक़ाइक़ छुपाने के लिए करते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि आया जो पुलिस इनके साथ का काम कर रही है, या तो बताते हैं ना कि ये पुलिस ने ये हमारा ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, फिर तो बात बनती है। लेकिन जब इन्होंने एहतजाज किया तो अफसरान को ये भी नहीं बताया कि हमने क्यों एहतजाज किया है। उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं था। हमारे आला अफसरान वहाँ मौके पे आए, उन्होंने पूछा हाँ भाई क्यों एहतजाज कर रहे हैं, बंदे हमारे हमने अरेस्ट कर लिए हैं, बच्चा जो है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है, अब क्या मकसद आपका एहतजाज करने का? लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। अच्छा ये बताएं कि अब मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो अरेस्ट हो चुका है, क्या कहाँ तक, किस स्टेज पे है हमारा केस जो है, और क्या क्या इसमें भी बाकी है? जी, मरकज़ी मुल्ज़मान अरेस्ट है और वो रिमांड पे है, फिजिकल रिमांड को चल रहा है। तो जो फर्दर जो तफ्तीश है वो चल रही है, तो जो इंशाअल्लाह जो भी हक़ाइक़ होंगे आपके सामने होंगे। पुलिस की सबसे पहली प्रायोरिटी मोहसिन भाई होती है कि मुल्ज़िम जो है वो एक तो इकबाल जुर्म कर ले, और दूसरा मर्डर वेपन जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या इस केस का जो मर्डर वेपन है वो पुलिस ने रिकवर कर लिया? जी बिल्कुल, जो मर्डर वेपन है वो भी रिकवर कर लिया है। जो अक्यूज़ है, जो मेन मुल्ज़मान है, वो भी हमने अरेस्ट कर लिए हैं, वो फिजिकल रिमांड पे हैं। फर्दर जो तफ्तीश है वो जारी है। अच्छा मोहसिन भाई, एक सवाल और जो हम अक्सर पुलिस अफसरान से करते हैं कि ये कत्ल जैसा बड़ा जुर्म, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इस बड़े जुर्म के अक्सर मुल्ज़िमान जो हैं पुलिस मेहनत करती है। आपने अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर रेड किए, आपने कई दिन तक भूख प्यास बर्दाश्त की, आपने एक टारगेट सेट किया, उस टारगेट को अचीव किया, पुलिस ने अपने एंड पे काम मुकम्मल कर लिया। अब क्या ऐसा होता है कि ये मुल्ज़िमान जेल जाते हैं 2, 2.5, 3 मैक्सिमम 4 साल के बाद, ये लोग हमें फिर इन्हीं गलियों बाज़ारों में दंदनाते हुए नज़र आते हैं? कहाँ पे लूप होल है? क्या मुद्दई बैठ जाते हैं? क्या सुलह सफाई हो जाती है, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है? ऐसा क्या होता है कि ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए जेल में, या इनको कोई करार वाकई सज़ा जिसे हम कहते हैं वो नहीं मिलती, बल्कि ये वापस आके इसी सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर दोबारा पता चलता है कि कुछ अरसे बाद ये किसी बड़े जुर्म में मुलव्वस है? असल में जो पुलिस का काम है वो यही है कि जो मेन जो मुल्ज़मान है, जो तफ्तीश है वो हक़ाइक़ की रोशनी में हो, और जो मुल्ज़मान है उनको करार वाकई सज़ा मिले। जो पुलिस है वो अपनी जो एफ़र्ट है वो पूरी करती है, जो इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, और आगे जो मराहल हैं अपना कोर्ट्स के वो तो अल्लाह बेहतर जानता है क्या है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मिशन है वो यही होता है कि हम मुल्ज़मान को हम तो जो है ना मज़लूम, हम उनके साथी हैं। एहतजाज और इस तरह का जो है ये वाकई में ये हर्डल है? ये हर्डल है, बिल्कुल हर्डल है। अब देखें ना, मेन रोड उन्होंने अपना हमारा ब्लॉक कर दिया, उधर हम मसरूफ़ हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, मुल्ज़िम हमारे अरेस्ट हैं, इन्होंने हमारा जो मेन रोड है फैसलाबाद का वो ब्लॉक कर दिया। तो ये हर्डल ही है जी। हालांकि इसमें हमारी जो पुलिस की ज़रा भी कोताही नहीं है, हमारे जो अफसरान हैं वो मौके पर है, हर जो चीज़ है वो इनके नोटिस पे है, ये काम हो रहा है, सब बिल्कुल क्लियर था। इसके बावजूद उन्होंने पता नहीं लोगों की कह लें कि मैं कहता हूँ कि लोगों का ना हमदर्दी लेने के लिए ये काम किया है। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर मोहसिन अली कंबो, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे, और इनका यही मौक़िफ़ था कि जो एहतजाज किया गया, जो लवाहिकीन की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया, उसमें कोई सदाकत नहीं थी। पुलिस ने 15 की कॉल रिसीव होने से लेकर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी तक कहीं एक जगह पर भी कोताही नहीं बरती, और पुलिस का मुल्ज़िमान को अरेस्ट करना इस बात का सबूत है कि पुलिस ने जहां बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था वहां ब्लड का अरेंजमेंट से लेकर उसके पोस्टमार्टम के बाद जो मुल्ज़िमान को राउंड अप किया, ये फैसलाबाद पुलिस के काम का पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। जाहिर है मुल्ज़िमान कत्ल जैसा संगीन जुर्म करने के बाद घरों में नहीं बैठे थे, तो पुलिस ने उनके अजीज़ो अकारब को उठाया और उसकी वजह से उनको उसके बाद टेक्निकल सोर्सेज यूज़ करने के बाद मरकज़ी मुल्ज़िमान तक पहुंची पुलिस और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, आपने मुद्दईयान और मुतासरीन की तमाम गुफ्तगू सुनी और टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद के थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर राना मगफूर अहमद ख़ान, SHO हैं थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के। इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या रिवायत चल पड़ी है कि मर्डर होता है और विद इन नो टाइम डेड बॉडी साथ रख के रोड्स ब्लॉक किए जाते हैं। पुलिस ने 3 से 4 दिन के अंदर अंदर
जो मफरूर कातिल थे उनको अरेस्ट कर लिया। कहाँ से अरेस्ट किया, क्या सारा प्रोसेस था, ये जानते हैं SHO थाना गुलाम अहमदाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मगफूर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये एक ऐसी स्टोरी है मगफूर भाई जिसे हमने गुज़िश्ता हफ्ते अपने नाजरीन को दिखाया। एक बच्चा है, मैट्रिक के सप्ली के पेपर दे रहा है और वो मुबैना तौर पर अपने दोस्तों के हाथों ही कत्ल हो जाता है। कैसे आपको मामला रिपोर्ट कैसे होता है, और इस पर सबसे पहला सवाल भी यही है कि आखिर जो मुतासरीन हैं, जो वालिदैन हैं और अहले इलाका हैं, वो एहतजाज पे क्यों गए? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जी, आपके सवालात हमेशा इस तरह के होते हैं, ऐसे डायरेक्टिव होते हैं कि बहुत सारी बातें जो मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ आवाम के साथ, आपके तवज्जो से पहुँच जाएँ, तो आप इतने अच्छे तरीके से अपना सवाल पुट करते हैं कि उसमें वो जवाब दे के बड़ी आसानी होती है। अच्छा, इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि उमर था बच्चा, उमर अली इसका नाम था, कोई 17-18 साल इसकी एज थी, मैट्रिक का स्टूडेंट था। इसकी 15 पे कॉल चलती है कि फायरिंग के नतीजे में एक बच्चा ज़ख्मी हो चुका है। उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं मैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन SDPO साहब, ASP साहब सर्कल गुलबर्ग, तो मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ। उसके बाद मैं जाए वकूआ पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके हम कोई जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करते हैं। मोटरसाइकिल पे नौजवान सवार थे जिन्होंने फायरिंग की और उसके नतीजे में उस बच्चे जो कि मजरूब हो गया था और बाद अज़ां उसकी अगले दिन उसकी डेथ हो गई थी। उस पर हमने वहाँ पे इनिशियली आगाज़ किया इन्वेस्टिगेशन का, कोई जो मालूमात मिल सकती थी अहले मोहल्ला से वो इकट्ठी की। उसके बाद हमने जो फुटेजेस थी, जो टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं, उनको ब्रुए कार लाते हुए वहाँ से कोई फुटेजेस कलेक्ट किए हमने। उसमें बंदे कोई नज़र आ रहे थे लेकिन इतने वाजे नहीं थे कि उनको कोई आइडेंटिफाई करके फ़ौरन बता सकता। फिर इन द मीन वाइल जो मुद्दईयान थे उनकी तरफ से भी कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ा राइज़ होना शुरू हुई। उसके नतीजे में जब हमें पता चला कि ज़ीशान और अफशानी शाह नाम का लड़का और साथ उसके कुछ रिश्तेदार थे जो इस वकूए में मुलव्वस थे, हमने उनके ऊपर उसी दौरान, यानी उसकी कोई अफसराने वाला के हुक्म से कुछ टीमें तश्कील दे दी गई, जिनमें से जो एक रेडिंग पार्टी थी उसको ख़ुद मैं लीड कर रहा था। हमने कोई तकरीबन 13 जगहों पे रेड किया, मुख्तलिफ़ 13 जगहों पे, उनके घर से लेके उन जगहों पे जहाँ पे उनके कोई दोस्तों के साथ उनका उठना बैठना, या वो वाली जगह भी जहाँ पे उनके कोई जानवर थे और अपना ज़िम्मेदारा करते थे, यानी हर उस जगह पे हमने रेड किया जहाँ से मुमकिन था कि दस्तयाब हो सकते हैं मुल्ज़मान। लेकिन तब वो ज़ाहिर है जिस बंदे ने एक बंदे का खून कर दिया नाहक, तो 302 PPC से बड़ी कोई दफ़ा नहीं है पाकिस्तान पिनल कोड में, और मारने वाले को भी पता है कि एक बंदा तो दुनिया से गया और बचना मैंने भी नहीं है, तो फिर उसने भी उसी टेंसिटी के साथ अपने आप को छुपाने की, अब इस गिरफ्तारी से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। तो ये बड़ा मतलब टाइम टेकिंग और बड़ा मेहनत तलब काम होता है। खैर, हम जितने हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको ब्रुए कार लाते हुए जितनी कैपेसिटी है हम कोशिश में लगे रहे। हमने दूसरे शहरों में भी जाके रेड्स कंडक्ट किए, तो अल्लाह पाक ने रहमत की। अल्लाह की रहमत से तीसरे दिन ये बंदे हमने अरेस्ट कर लिए। दूसरे शहरों, मगफूर भाई हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि दूसरे अजला में भी आपको जाना पड़ा, तो क्या ये पुलिस का प्रोसेस स्लो डाउन नहीं हो जाता कि एक तरफ पुलिस जो है वो रेड्स कर रही है, वो अपनी टेक्निकल टीम्स को जो है वो एक्टिव किए हुए है, और दूसरी तरफ अगर एक वही लवाहिकीन रोड ब्लॉक करके बैठ जाते हैं और उनको जाके भी तसल्ली देनी है, उनको भी बताना है कि हम फ्री नहीं बैठे हुए, तो क्या ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं हो जाता जो एहतजाज और प्रोटेस्ट है? अगर मर्डर को बहुत अरसा हो गया है, पुलिस नहीं कार्रवाई कोई कर रही, अगर वो मुतमईन नहीं है, तो फिर भी एक ड्यू प्रोसेस है कि आप आला अफसरान के पास जाएं, उनसे कहें, क्योंकि आजकल खुली कचहरी लग रही है, अफसरान अवेलेबल हैं, डोर स्टेप पे इवन अवेलेबल हैं आपको। तो इससे किस हद तक फ़र्क पड़ता है पुलिस की एफिशिएंसी में कि आप एक तरफ जाके उनको कहें, तसल्ली दे रहे हों, उनके साथ जाके बैठ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप रेड्स कर रहे हों? जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो देखें कि जिसका नुकसान हुआ होता है हम उसके ऊपर शिकवा नहीं कर सकते, हालांकि ये बात काबिल शिकवा है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इसमें अगर तो ऐसे होता कि इस वकूए को गुजर चुके होते बहुत सारे दिन और उसमें कोई प्रोग्रेस ना होती, पता होने के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान को पकड़ ना पाती, तो फिर तो उनका ये जायज़ था। खैर, हम उन पर शिकवा नहीं करते, उनका दुख बहुत बड़ा था, उनका जवान बच्चा मर्डर हो गया। लेकिन उन्होंने, ये दूसरी बात आपकी बड़ी वैलिड है कि पुलिस को ये वाली चीज़ें
और डिले कर देती हैं। यानी ज़ाहिर है जब रोड ब्लॉक होगा, वही अफसरान जिन्होंने उन मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए कोई तहर्रुक करना था, कोई रेड्स करने थे, कोई दूसरी स्ट्रेटजी कोई प्लान करनी थी, वो ये सब कुछ छोड़ के फिर रोड्स पे चले जाएंगे और उनको मनाने में लग जाएंगे। और जो शुरू का टाइम होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे केसेस मैंने अपनी जितनी मेरी सर्विस है उसमें देखा है मैंने कि शुरू में जो केस ट्रेस हो जाएं वही केस होते हैं। जैसे जैसे उसमें डिले आता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, वैसे वैसे उसके जो ट्रेसेस हैं मतलब हर क्राइम के वो मध्यम होते चले जाते हैं। और उसी तरह जो मुल्ज़मान हैं वो भी इतने मुश्किल हो जाता है उनको गिरफ़्तार करना कि बाज़ औक़ात अभी तक बहुत सारे केसेस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं कि वो तब नहीं गिरफ़्तार हुए और आज के दिन तक नहीं गिरफ़्तार हुए। तो इसमें उनको चाहिए तो यही था जैसे आपने फरमाया कि वो पुलिस पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते, पुलिस को मौका देते कि हम देखें तो सही ये करते क्या हैं। इसके बावजूद अगर हम उसमें फ़ेल हो जाते, हम नाकाम होते या उनको ये नज़र आता कि इन्होंने जो करना चाहिए था वो करने में कोई कसर छोड़ी है, तो फिर उनका राइट था वो कर लेते। हमने मगफूर भाई बारहा उनसे पूछा कि गिला क्या है। उन्होंने कहा जी कि ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਰਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ कि जी मैनू पापा शानी ने मार दिता है। असल बंदा अभी तक पुलिस नहीं पकड़ रही और पुलिस जैसे आपने बताया कि 13 जगह पे रेड्स किए गए और फिर भी तकरीबन 72 घंटे के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर जो मुल्ज़मान अरेस्ट हो गए हैं। तो एटलीस्ट पुलिस को इतना टाइम देना चाहिए कि एक बंदा है जिसने ऐसा बड़ा इससे बड़ा क्राइम जैसे आपने फरमाया कि है ही कोई नहीं कि कत्ल करके बंदा ज़ाहिर है वो घर पे आराम से सो तो नहीं रहा होगा, वो भागेगा और पुलिस उसको पकड़ेगी। कहाँ से इनको अरेस्ट कहाँ से किया गया और जो मर्डर वेपन्स वगैरह हैं वो रिकवर हो गए। सॉलिड स्ट्रॉन्ग कंक्रीट केस क्या अभी तैयार है? जी जी, जैसे आपने फरमाया ना कि इसमें टाइम लगता है। देखिए ना 13 जगहों पे, और वो 13 जगह ऐसे नहीं है कि आप इस कमरे से निकले अगले में चले गए, उससे अगले में चले गए। वो ऐसी है कि एक जगह गुलामाबाद में और दूसरी जगह समुंदरी में है और तीसरी जगह कहीं झुमरा में है, चौथी जगह तांदला में है। तो 13 जगहों पे आप वैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में सिर्फ चक्कर लगाएं तो शायद आपको 3 दिन लग जाएंगे। तो हमने मेरे ख्याल में जिस दिन ये केस रिपोर्ट हुआ है तब से लेके जब तक उसके मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए हमने कोई और काम नहीं किया, कोई एक मिनट भी कहीं रुके नहीं है, चलती रही है। तो इसमें कोई ये नहीं खुदा न खास्ता कि किसी पे एहसान है, ये हमारा काम है, हमने करना होता है। लेकिन वो थोड़ा सा अफसोस ये है कि अब पुलिस का इमेज ऐसा है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते पुलिस पे। पुलिस की इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी अपनी ही नाअहली है कि हम अपना ये ट्रस्ट कोई बिल्डअप कर ही नहीं पाए अवाम की नज़रों में। उनको हमने ये कभी तासुर ही नहीं दिया कि हम आपके गम गुसार हैं, आपको आपके गम में आपका कोई कमी करेंगे, इजाफा नहीं करेंगे। गफूर भाई, हमारी सीएम साहिबा, हमारे आईजी साहब ने एक नई कैंपेन लॉन्च कर दी है। नाजायज़ असलहे पे बल्कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। नए लाइसेंस क्लोज़ कर दिए गए हैं, पुराने जो हैं उनका बाकायदा भी अंदराज होगा और टाइम दे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में या खिदमत मरकज़ में जाके अगर आपके पास कोई इलीगल वेपन है तो वो जमा करवा दें। इतनी वेपनाइजेशन आखिर क्यों हो रही है? बच्चे हैं मैट्रिक लेवल के, कॉलेज लेवल के, नाजायज़ असला उनके साथ लगा हुआ है, स्मॉल आर्म्स हैं वो कैरी कर रहे हैं या घरों पे पड़ा हुआ है। ये कब डी वेपनाइज होंगे हम? कितना टाइम लगेगा? क्या जो गवर्नमेंट ने 1 महीना दिया है वो काफ़ी है या इस पर फिर मज़ीद काम करने की ज़रूरत? ये आपने जैसे मैंने पहले गुजारिश की थी कि आपका बड़ा अच्छा तरीक़ाकार होता है। आपने इस जो मैटर है इसके कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा अच्छा पॉइंट एक और सामने ले आए आप। ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम इस माशरे को पहले आर्मलेस करें। मेरे ख्याल में वेपन सिर्फ 2 बंदों के पास होना चाहिए लॉजिकली, या तो फोर्सेस के पास या अगर किसी दूसरे बंदे के पास है तो आप समझ लें कि वो कोई क्राइम करने वाला है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि जिस माशरे में फोर्सेस हों, जिस माशरे में अदालतें हों, कानून हो, उसका एक आइन हो और कानून के ऊपर अमल दरामद हो रहा हो, वहाँ पे लोगों को कोई वेपन रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप हर चीज़ की ज़िम्मेदारी स्टेट पे डालते हैं तो फिर ये वेपन भी फिर स्टेट के ज़िम्मे डाल दें। तो ये तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी, हमारी गवर्नमेंट इस पर स्टेप ले रही है और मेरे ख्याल में इसके ऊपर इससे भी ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए। इसके कानून में जैसे ये हमने जो पतंगबाजी उस पर थोड़ी सी सख्ती हुई है, अब मैं समझता हूँ वो भी अभी थोड़ी है, इससे भी ज़्यादा हो जानी चाहिए। तो ये बिल्कुल अभी भी बहुत कम हो गई है, ना होने के बराबर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सख्ती की जाए तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि हमारी आवाम इतना शऊरी लेवल इनका हाई नहीं है कि ये चीज़ों को ख़ुद जज कर सकें। इनका उस मासूम बच्चे वाला हिसाब है जिसको हम उसके भले के लिए कोई कड़वी दवाई जो दवाई होती है ना वो थप्पड़ मार के भी खिलाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इससे इसने ठीक होना है।
तो ये अवाम के लिए बेशक सख्ती करनी पड़े, इनके बेहतरी, इसमें इनकी बेहतरी है। आप देखें कि ये हमारा खैर से सोशल मीडिया में इन चीज़ों को बड़ी प्रोजेक्शन मिलती है, बड़ा इनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है ऐसी चीज़ों को, और इसी चक्कर में अब ये वाला जो केस है इसको भी हम थोड़ा डीप प्रोब इन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसकी भी वजह कहीं ना कहीं पे ये सोशल मीडिया और उसके जो हैज़र्ड्स हैं वो बन गए। मैं यही पूछने वाला था कि इसमें जो ज़ाहिर है हम ने पेरेंट्स के साथ किया वो बिल्कुल लाइल्म है, बज़ाहिर अहले मोहल्ला से किया, बज़ाहिर लाइल्म है। हो सकता है किसी को कुछ पता भी हो तो ऑन कैमरा कोई बोलने को तैयार नहीं था कि वजह क्या है, क्योंकि हर कोई ये कह रहा था ये दोस्त हैं, साथ उठने बैठने वाले, एक दूसरे के ड्राइंग रूम्स में बैठने वाले, बड़े फास्ट फ्रेंड्स हैं, 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप है। समझ नहीं आई कि क्यों एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को जो है वो कत्ल कर दिया। मुल्ज़िमान आपके पास हैं, आपकी तफ्तीश का अमल जारी है, क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या? इसमें ना जी, ये आपने जो बात की ना कि ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, जो लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं फिर उनके दरमियान में कोई बैरियर्स, कोई बाउंड्रीज़ नहीं रहती। फिर आगे सवाल उठता है कि बैरियर्स और बाउंड्रीज़ होने के बावजूद किसी में कितनी अकल है, कितना शऊर है, कितनी समझ बूझ है कि वो उन बैरियर्स को पार कर लेता है या वो अपनी लिमिट में रहता है, और अगर पार करता है तो वो किस हद तक पार कर लेता है कि उसके कुछ फिर आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि ये दोस्त थे लेकिन एक दूसरे के घरों तक आना जाना, मिलना मिलाना था। तो फिर जब इस हद तक हो तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारा माशरती लेवल पे जो जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके ऊपर फिर इस तरह के रिएक्शंस आते हैं। मकबूल भाई, आप समझते हैं कि हमें अपनी औलाद को अगर अपना बेस्ट फ्रेंड हम बना लें तो शायद उनको घर से बाहर ना दोस्तियां करनी पड़े और शायद इस तरह के क्राइम्स जो हैं वो कम हो जाए? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने बच्चों का, आप इस बात पे तसल्ली बख्श रहे हैं कि मेरे बच्चे के दोस्त या मेरी बच्ची की सहेलियाँ कैसी हैं। अगर तो वो अच्छे लोग हैं, शरीफ और भला मानस हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, तो आप समझ लें कि आपका बच्चा भी ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ने लिखने वाला, बड़ा भला मानस, बड़ा शरीफ मासूम है, पर उसके दोस्त को थोड़े से मतलब अच्छे लोग नहीं हैं, तो फिर आपको फ़िक्र करनी चाहिए। और सबसे बड़ा दोस्त वालिदैन ख़ुद होते हैं। तो आपको चाहिए कि बच्चे के लेवल पे जाके उससे दोस्ती करें, उसके साथ उस तरह का ट्रस्ट डेवलप करें कि वो किसी और के साथ अपनी बातें शेयर करने की बजाय आपसे शेयर करें, ताकि उन बातों में किसी बाहर वाले के साथ शेयर करेगा तो वो उसको ठीक करने की बजाय और स्पॉइल कर देंगे। लेकिन बच्चे का बाप, उसका बड़ा भाई जब उसके साथ शेयरिंग करेगा तो वो उसको समझा देगा कि नहीं, ये इससे आगे मत जाओ, रुक जाओ, यहीं पे वापस हो जाओ। तो इस पे भी ऐसा ही था इस केस में कि मतलब दोनों तरफ से इतना तजावुज़ हो गया कि वो नुकसान इस हद तक चला गया कि जिसको हम कहते हैं कि इर्रिपेयरेबल लॉस है, ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान। तो अब नाकाबिल तलाफ़ी है कि बेशक ये मुल्ज़मान पकड़े गए, हमने जो मर्डर वेपन था वो रिकवर कर लिया, जो उसमें मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी इस इंसिडेंट में वो भी रिकवर कर ली, हमने इवन उनके कपड़े जूते तक रिकवर कर लिए जो इस इंसिडेंट के दौरान उन्होंने यूज़ किए थे। पर इस सब के बावजूद वो बच्चा वापस नहीं आ सकता। उसके कत्ल के पीछे जो भी वजूहात थी, अगर उनको टाइमली हमने रोक लिया होता, उनका कोई तदारुक कर लिया होता, तो शायद आज वो बच्चा ज़िंदा होता और इस माशरे का एक मौसर और पॉजिटिव फ़र्द बन के एक ज़िंदगी गुजार रहा होता। मकबूल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम गुज़श्ता से पैवस्ता था और गुज़श्ता हफ्ते हमने आपको फैसलाबाद में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद की हदूद में कत्ल होने वाले एक बच्चे के लवाहिकीन और इलाका मकीनों की गुफ्तगू सुनवाई। आज पुलिस ने इस पे कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को अरेस्ट कर लिया है। एक बच्चा जो कम उम्र था अपनी जान से गया और दूसरा ख़ानदान कातिल बन के मुतासर है। नाज़रीन इकराम, हम अपने रवैयों में अगर ठहराव लाएं, बातों को, मसाइल को बातचीत से हल करें तो शायद इस तरह के सानिहात से बचा जा सकता है। और आज की गुफ्तगू में राना मगफूर अहमद ख़ान ने जो दूसरा पॉइंट बताया और जो म्यूचुअल डिस्कशन में सामने आया वो ये कि इस सोसाइटी को टॉलरेंस के साथ, बर्दाश्त के साथ डी वेपनाइज करने की अशद ज़रूरत है। आप अपने बच्चों पे नज़र रखिए, उन्हें अपना दोस्त बनाकर रखिए, उन्हें ऐसा माहौल दीजिए ताकि वो जराइम की तरफ ना जाएं। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।